Welcome Ayurveda Warriors. This is Dr. Hitesh Chaudhary. I'm the founder of Specialty Practice Blueprint, and I'm on a mission of empowering 10,000 Ayurveda graduates to start their specialty practice and create the identity globally. But before starting these missions, there are many stalwarts who have already started this mission 25-30 years back. We have seen in last series of interviews the other practitioners, but today in the Disha, the Pathfinders in Ayurveda, I'm going to talk and interact and discuss with a new stalwart known to everyone, but we are going to listen from his mouth about his journey and what exactly he is doing. But before that, I am going to give a brief about him. Only one thing, what I found, like search about him on Google and there is a one page on Wikipedia and everything is there. But just to tell in brief, he is the great Vaidya Padma Shri Balendu Prakash sir. Sir, I welcome you here. Thank you. Yes, so लोग प्यार से उन्हें वैद्य जी कहते हैं, बस वैद्य जी कह दिया तो वो अपने आप सामने आ जाता है बालेंदु प्रकाश सर का नाम। उनके बारे में क्या कहना? He was the great achievement is like he was the honorary physician for the President of India in the time period of 97 to 2000, and he received the Padma Shri, the great honor given by Government of India at 1999. He is the founder of PADAV, a specialty clinic. It is a hospital, in fact, 31-bedded hospital, and his specialty is acute pancreatitis. So he is known at a global level for his expertise in acute pancreatitis. So today we are going to hear from his mouth how he has started all these things, whether he was started just from childhood because his parents were doctor, or he wanted to become someone else, but because of his parents, he started to become a doctor. So we don't know. And we are really excited to know about him, how he has started this journey. So sir, my first question is, आपको बनना था डॉक्टर या पिताजी वैद्य थे? He was practicing and then you started, चलो ठीक है, उनको देख के आपने ये शुरू कर दिया था. How was it? Hitesh ji, thank you very much for inviting me on this forum. Yes. And introducing me to your audience. But you can read from my mouth, my smile is telling you something. Who brought me to this domain? Neither my parent nor myself. Oh. जब आप पूरा ना मुझे मेरे ना मेरे माँ बाप मुझे आयुर्वेद में लेके आए, ना मैं बनना चाहता था। और अगर कुछ लोगों ने मेरे लेक्चर सुने हो तो मैं आज एक वैद्य हूँ और मैं सुनता हूँ कि मैं कामयाब वैद्य हूँ, नामी गिरामी वैद्य हूँ, धनवान वैद्य हूँ, परंतु मेरा इंटर तक का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। मैंने 2 बार में इंटर पास किया और दूसरी बार में भी नकल मार के 48%। तो मेरे से मेरे माँ बाप दुखी थे कि तुम करना क्या चाहते हो। और मैं, अगर मैं बोलता हूँ, मैंने बोला भी है कि मैं वो बच्चा था जिसे बोलते एमलेस और उसके साथ एक और शेमलेस। तो मुझे कुछ नहीं करना था जिंदगी में। आज मैं आपके सामने पद्मश्री वैद्य बालेंद्र प्रकाश। बैक बेंचर्स आर द ग्रेट अचीवर्स। हमने बैक बेंचर तो वो थे जो क्लास में जाते हैं, क्लास में जाती है, वो बैक बेंचर कहाँ से हो? तो फिर आप आयुर्वेद में कैसे आ गए सर? आपको फिर क्या क्या दिलचस्पी थी कि आप आयुर्वेद में एडमिशन ले? शायद से आपने पहले बीएससी किया था। हाँ, देखो ये जो पढ़ाई थी मेरी, इंटरमीडिएट, बीएससी, ये शायद मेरे फन के टाइम थे, क्योंकि कुछ लोग मजा तो सभी करते हैं, कुछ लोग पहले मेहनत करते हैं, बाद में मजे करते हैं। और मैंने जिंदगी के जो जवानी कहते हैं ना, उठती हुई जवानी में जितने मजे किए, उसके बाद जब मैं आयुर्वेद में आ गया तो जैसे एक बैल के ऊपर जुआ रखा जाता है, वो रखा गया और मेरे सारे मजे की जिंदगी खत्म हो गई। शाम को 8 बजे है, बसंत की हवा चल रही है और हितेश जी ने मुझे कैमरे के सामने बिठाया हुआ है, मजे कहाँ से? तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी डेस्टिनी थी। जो कुछ हुआ मेरी जिंदगी में, चाहे मैं वैद्य के घर में पैदा हुआ,
चाहे मैं इंटर में फेल हुआ, चाहे बीएससी में राजनीति हुई, और सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मुझे आयुर्वेद में आना पड़ा। और आयुर्वेद में आने के बाद जब एक तरफ मैं अपने पिताजी को असिस्ट कर रहा था, मुझे इसमें शौक लगा। मुझे इंटर तक की पढ़ाई क्यों अच्छी नहीं लगी, बीएससी की पढ़ाई क्यों अच्छी नहीं लगी, और क्यों मुझे चरक और सुश्रुत अच्छे लगे। क्योंकि जो लिखा है उसी को पढ़ के लिखना अगर है तो वो वैधता नहीं है, वो कॉपी कट पेस्ट है, वो टेप रिकॉर्डिंग है। पर मुझे चरक संहिता में जो सबसे पहले अच्छी लिखी पृथ्वी संस्कार, शास्त्र को पढ़ेगा वो अल्प बुद्धि वाला है, इसलिए मैंने उसको पढ़ा ही नहीं। पर उन्होंने ये भी लिखा कि शास्त्र को पढ़ने के बाद वो समकालीन ग्रंथों को पढ़ेगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इन सबको पढ़ने के बाद इसका समन्वय स्थापित करके जो पृथ्वी संस्कार करेगा, तो मुझे एक मैन ऑफ इनोवेशन। भारत के जो राष्ट्रपति थे नारायण साहब, उनसे मेरी मुलाकात 28 साल की उम्र में हुई, और उन्होंने मेरे बारे में एक मैसेज लिखा कि वैद्य बालेश्वर प्रकाश हैज ए साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड। पहली बार एक 44 इयर्स ओल्ड जो थे मेरे से विद्वान आदमी ने मेरे अंदर एक छिपा हुआ वैज्ञानिक पाया। तो मुझे, मैं बचपन से खोजी प्रवृत्ति का हूँ। कोलंबस की कहानी। कितनी थी, आपने कितना बताया? 28 इयर्स में मेरी नारायण साहब से मुलाकात हुई थी। अच्छा। और वो ऐसे नहीं हुई थी इत्तेफाकन, उससे पहले 2 साल पहले मेरे पास एक बच्चा लाया गया था लंदन से, जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद ब्लड कैंसर रिपीट हो गया था, और डॉक्टरों ने उसे 3 हफ्ते बोले थे लंदन। इत्तेफाकन वो हिंदुस्तान आए थे पढ़ने के लिए, मेरे से मिले, बच्चा ठीक हो गया। और उसके बाद लंदन का डॉक्टर हैरान था कि जिसको मैंने मरने के लिए बोला बच कैसे। तो जब वो आया, वो खबर हिंदुस्तान में बनी, और हिंदुस्तान में जब खबर बनी तो हमारे विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री नारायण साहब थोड़े अलग से थे। उनको जब खबर मिली तो उन्होंने मेरे से इच्छा जाहिर की कि मैं मिलना चाहता हूँ, और मैं बड़ी हिचक के साथ, अकड़ के साथ उनसे मिला। और पहली बार मैं अंग्रेजी में मैंने किसी से बात की, क्योंकि मेरी अंग्रेजी बहुत कम। और नारायण साहब ने मुझे पोसा। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी जिस दिन मेरा रिजल्ट आया बीएमएस का, उसी दिन मेरे पिताजी को एक्यूट अटैक पड़ा, लीवर फेलियर था। मैं 1 मिनट भी अपने पिताजी के साथ उनके तख्त पर बैठ के चिकित्सा नहीं की। तो ये एक डेस्टिनी थी, एक को आना था, एक को जाना था, और मैं उस क्रम में एक वैद्य बन गया। तो मैंने, आज भी मैं वही इंटर पास हूँ, परंतु मुझे पता है कि आयुर्वेद के अंदर जो खोजी है हो रही थी, जो मेरे चारों तरफ हो रही थी, कि मेरे पिताजी तो कुछ ऐसे लोग ठीक हो रहे थे जिनको एलोपैथी में मौत कहते, वो फिर मेरे हाथ से भी ठीक हुए। तो इसके पीछे विज्ञान क्या? ये च्यवनप्राश तो सब बेचते हैं, पर मेरा सवाल होता है कि किसको खाना है, कितना खाना है, खाने से पहले खाना है, खाने के बाद खाना है। अभी मेरी एक दवा स्नीज क्योर है, वो मुंह में जाके लोगों का जुकाम ठीक करते हैं, लोग ठीक होते हैं। पर मेरा आज भी मेरी यूनिवर्सिटी के वेटरी साइंस के साथ बात हो रही थी कि मुंह में जाने से लेकर नाक तक के फायदे और रूट क्या है, ये काम कैसे कर रही है। तो मेरे अंदर, मैं वैद्य नहीं हूँ, मैं वैद्य बाय डिफॉल्ट हूँ। मेरे अंदर एक क्वेरी है, मैं एक ब्रिज हूँ, बीएमएस, जिसको मैं कहता हूँ ब्रिज बिटवीन आयुर्वेदा एंड मॉडर्न साइंस। और मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद रूपी जो ज्ञान सागर है, इसमें विज्ञान के साथ परिभाषित करके हम इसे महासागर में बदलकर देश के लिए और समाज के लिए बहुत यस, थैंक यू सर। ये मतलब एक पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो बाहर लोगों को लगता है कि हाँ इनके जो पिताजी थे पहले से डॉक्टर थे तो उनको सब बना बनाया मिल गया, लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि एक गया और दूसरा आया, तो ये जो पीढ़ी का जो है आपको बहुत कुछ नहीं मिल पाया, लेकिन आपने जितना कुछ ऑब्जर्व किया अपने बचपन से लेके अब तक, वो खाली ऑब्जर्वेशन से आपने आगे अपना खुद का एक जर्नी बनाया, एक नाम बनाया, जो कि अभी सबको पता है कि पद्मश्री वैद्य जी क्या चीज है। तो सब पूरे दुनिया में एक नाम से जाने जाते हैं कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के लिए। तो सर ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस आपने कैसे आपकी स्पेशलिटी तय की? ये अगेन हितेश जी, एक बहुत लंबी लंबी कहानियां मेरे पास हैं, और मैं बोलूंगा तो आपका प्रोग्राम बहुत छोटा पड़ जाएगा। इन शॉर्ट बता दीजिए। मेरे पिताजी एक रस वैद्य थे, और वो अपनी दवा बना के प्रैक्टिस करते, और उनका अंदाज निराला था, और वो शायद यादव जी तिक्रम से प्रभावित थे, जिन्होंने सिद्ध योग संग्रह के रचयिता है। यादव जी तिक्रम जी भैषज रत्नावली की या दूसरे नुस्खों को लेके थोड़ा किंचित परिवर्तन करके अपनी चिकित्सा में प्रयोग करते थे, और उसको उन्होंने सूद रूप में पिरोया।
उसी से प्रेरित होकर मेरे पिताजी भी कुछ फार्मूलों को लेके, आयुर्वेद के सिद्धांतों को लेके नई नई रचनाएं करते थे। तो 70 के दशक में उन्होंने एक दवा बनानी शुरू की। तांबा लिया, तांबे को शुद्ध किया, फिर पारा लिया, पारे को उन्होंने प्रोसेस किया 9 महीने तक, फिर पारे तांबे को मिलाया और उसमें फिर गंधक मिला के एक विलक्षण प्रयोग किया, गंधक चारणा। तो रस तरंगी में लिखा है कि पारा चाहे अष्ट संस्कारित हो, चाहे इंगुलोत हो, यदि उसमें गंधक चारणा नहीं किया तो वो रोग नाशक शक्ति वाला नहीं होगा। तो पंच लाइन क्या है? संस्कार नहीं, पारे में गंधक की चारणा। और ये करके पिताजी ने एक यंत्र बनाया, नलिका डमरू यंत्र। और नलिका डमरू यंत्र में गंधक चारणे का जो प्रयोग था, उन्होंने गंधक डाली और दिव्य और अपराजिता देवदाली के रस में उसको घोटा और उड़ा लिया। जब गंधक उड़ गई फिर खोला, फिर उसमें गंधक मिलाई और फिर उन्होंने गंधक चारणा की। तो रस तरंगिणी में एक श्लोक है, समेतु गंधके जीर्णे सामान्य गंधनाशना द्विगुणेतु शेषेण महारोग विधूर्णा त्रिगुणे क्षय पुंसत्व प्रकाशना चतुर्गुणे मतोत्साह मेधा स्मृति विवर्धना पंचगुणे अशेष संतापनाशना रसेतु षड्गुणे विविध अद्भुत कार्यक्रम। तो शायद ये उनकी पंच लाइन थी। जब उन्होंने 100 बार गंधक चारणा की तो पारे में दुगनी गंधक रुक गई तो अग्नि में उड़ जाती है। तो पेनक्लेटाइटिस मार हो गए। वो दवा सन 72 के दशक में तैयार हुई। उस समय इत्तेफाकन, जिंदगी इत्तेफाक है, एक मरीज उनके पास लाया गया जो मर रहा था पेनक्रियाटिक कैंसर से, इसका पेट खोल के बंद कर दिया गया था और तीसरी प्रेरणा से अकाल तख्त पर सरदार को किसी ने कहा मेरठ चले जाओ। सरदारों ने कहा अकाल तख्त कैसे हुआ है? फिल्मी सीन था, वो लेके मेरठ आ गए। सरदार मर रहा था, बोले दवा दो, बाबूजी का नहीं दूंगा। बोले नहीं दोगे तो भी मरेगा, दोगे तो भी मरेगा, दवा दो। और मेरे पिताजी ने उस दवा को मुंह में डाला। उसके बाद 38 इयर्स तक, मुझे पता है वो सज्जन 70 साल की उम्र तक का तो मुझे उनका पता है, उसके बाद का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बहुत चेंज किया। तो ये दवा आज की नहीं है, ये सन 72 की दवा है और उसके बाद ये दवा काम करती रही। परंतु मेरे पिताजी के हाथों से कुछ कैंसर के मरीज ठीक हुए थे और मेरी सारी जिंदगी कैंसर में रही, क्योंकि कैंसर से भी खतरनाक था और खासकर ब्लड कैंसर। मैंने 36 साल कैंसर में लगाया। मेरे को पद्मश्री मिला, सब लोग बड़े शौक से कहते हैं, पर पद्मश्री मिलने के पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है कि 14 साल तक प्रोजेक्ट लेने के लिए एरिया लड़नी पड़ी, जबकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग मेरे को जानते थे। और 14 साल बाद मुझे प्रोजेक्ट मिला जिसमें मैंने 15 मरीजों का इलाज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के प्रोटोकॉल के अंतर्गत किया, जिसमें से 11 मरीजों ने 90 दिन का इलाज किया और 11 में से 11 ठीक हो गए, पद्मश्री मिल गई। परंतु मैं चाहता कुछ और था, हो गया कुछ और। मुझे पद्मश्री भी नहीं चाहिए थी और अभी भी नहीं चाहिए, परंतु मैं चाहता था कि अगर आयुर्वेद से प्रूफ ऑफ एफिकेसी पैदा हो रही है, इस औषधि को ड्रग मास्टर फाइल बना के साइंस के साथ डेवलप करके हम लाखों लोगों को मदद करेंगे। वो काम नहीं हुआ। फिर मैंने बहुत कोशिश की, इधर गया उधर गया, इंडस्ट्रीज के पास गया, फाउंडेशन बनाया। और ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर आयुर्वेद जैसा ज्ञान है, परंतु हमारी मानसिकता आविष्कार की नहीं है। हम आज भी मंदिर मस्जिद वाले हैं, आज भी हम धागा पहन के सोचते कि हमारा सारा काम हो जाएगा, हम उद्यमी नहीं। 36 साल के बाद बंबई से लेके बेंगलोर तक, कलकत्ता से लेके यहाँ तक बड़े बड़े करोड़पतियों के साथ दुनिया भर में था, मैंने देखा कि हिंदुस्तान में रह के जब आविष्कार नहीं होता। तो 2012 में मैंने हिम्मत छोड़ दी, वैद रहेगा, वैद बकरे पालेगा, 10,000 बकरे पालूंगा, बकरा ईद पे बेचूंगा, ऐसा काम छोड़ दी। परंतु 2014 होते होते थोड़ी सी ग्लानि आई, यार मेरे पे ज्ञान है, इतनी जल्दी हार मान जाएगा। तो 2014 में मैंने कहा कैंसर में तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वो सुनते ही नहीं। सब कुछ करने के बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मरीज ठीक हो रहे, वो भी एक्साइट नहीं है, हमारा सिस्टम एक्साइट नहीं है। सीसीआरएस केवल उसका यूएस और यूरोप में पेटेंट लेके खुश है, वो पद्मश्री देके खुश है, परंतु वेद वाले तो क्यों नहीं खुश है? क्योंकि आज भी उस बीमारी के लोग मर रहे हैं। तो अगर वो मर रहे हैं तो ये मेरे लिए कलंक की बात है, क्योंकि मैंने, चिकित्सक का धर्म है कि वो पीड़ित अगर मर रहे हैं और आपके पास ज्ञान है तो आप एक वही अपराधी हो जैसे दाऊद इब्राहिम अपराधी है, मेरे अंदर वो अपराध होता। तो 2014 में मैंने कहा चलो एक बीमारी पर फिर से उछाल मारते हैं, और अब ये मैंने पकड़ा पेनक्रेटाइटिस, क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस, जो लाइलाज है। फिर मैंने एक स्ट्रेटेजी प्लान बना के जुलाई में प्लान बनाया, नवंबर में फंक्शन किया, और उसके बाद क्योंकि आयुर्वेद के पास लोग आते क्यों? आयुर्वेद की क्रेडिबिलिटी डबल जीरो है, लोग विश्वास नहीं करते। मिस्टिसिज्म एक साइंस है, मिस्टिसिज्म बट ले पर्सन डू एक्सेप्ट इट।
साइंस मीन्स रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो उस क्रेडिबिलिटी के लिए मैंने एक फंक्शन किया, और फिर जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, प्लानिंग थी, 1 से 2, 2 से 3, और 17 साल में जिस आदमी ने 48 मरीजों का डेटा बनाया था, आज पिछले 6 साल में मेरे पास 1200 मरीज आ चुके हैं। एक ऐसी बीमारी का जिसका दुनिया में इलाज नहीं है, पर एक स्ट्रेटेजी है कि अगर मैं पैनक्रियाटिस जैसी बीमारी पर आयुर्वेद के नस्शास्त्र के सिद्धांतों को सिद्ध करके एक चीज करूंगा, तो आयुर्वेद रूपी महासागर में वैज्ञानिक कूद पड़ेंगे, क्योंकि आज जो आयुर्वेद का स्नातक है तो बहुत अच्छा, परंतु वो मध्यम पुरुष है, क्योंकि उत्तम पुरुष है वो एमबीबीएस पे सोचता है और बीएमएस पे जाके रुक जाता है। वो उत्तम पुरुष होते हैं जो ठान लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे इस प्रयास से, जो कि एक मिशन नोबेल प्राइज है, कॉपर को अगर हम मेडिसिन के तौर पे साइंस के साथ स्थापित कर चुके, तो आयुर्वेद में वो फिर कूदेगा, जो चाहता है वही करता है, जो आईआईटी में जाना चाहता है, जो एमबीबीएस बनना चाहता है, जो सेकंड लेफ्टिनेंट बनना चाहता है, उस उद्देश्य के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो पेनक्रियाटाइटिस को नई चीज नहीं है, एक पुरानी रिमिक्स है। सन 72 के गाने को मैंने फिर से गाना शुरू किया। सर, वैसे ही आपको खतरों के खिलाड़ी कहा जाता है, तो पहला खतरा आपने वो जो पैनक्रियाटाइटिस बीमारी चुनी है कि जो बहुत ही असाध्य कही जाती है, लेकिन आपने उसमें वो ठीक करके दिखाया। दूसरा खतरा ये है कि आप रसशास्त्र से उसको ठीक करो, कि रसशास्त्र ग्लोबल लेवल पे प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे नॉर्म्स है, बहुत सारे उसमें प्रोसेसेस है। और तीसरा खतरा जो है, आपने पद्मश्री मिलने के बावजूद भी मिशन नोबेल प्राइज अभी रखा है, तो जरूर आप खतरों के खिलाड़ी हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि आप रसशास्त्री हो, और रसशास्त्र में आप बहुत कुछ, मतलब यू आर प्लेइंग विथ मेटल्स एंड हर्ब्स। तो सर, आप ये पॉसिबल है क्या कि हम कभी ना कभी इस रसशास्त्र को पूरे दुनिया में एज अ मेडिसिनल फॉर्म्स में यूज कर पाएंगे? क्योंकि बहुत जगह पे हेवी मेटल्स टॉक्सिसिटी बोली जाती है, बहुत सारे हमने डॉक्यूमेंटेशन कर किए भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन फिर भी वो करने के बावजूद भी, चलो बाहर छोड़िए, इंडिया में ही हम जो भी मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं या वेस्टर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, वो लोग मेटल्स को, जो भी हमारी भस्म है, उनको वो एक टॉक्सिक एलिमेंट्स मानते हैं। तो ये हम कैसे, ये जो भी उनकी गलतफहमी, ये हटा सकते हैं? एक अकबर बीरबल की कहानी है। अकबर एक लाइन कहते हैं दरबारियों से, किस लाइन को छोड़ना, बीरबल आता है, बड़ी लाइन खींच देता है। किसी को मिटाना नहीं है। हम लोग आयुर्वेद में एक छोटा सी गलती करते हैं, हम कहते हैं हम सेफ है। सर, एक अकबर बीरबल का एक किस्सा है। अकबर कहता है एक लाइन खींच के, इस लाइन को बगैर छुए छोटा करना है। सारे दरबारी चक्कर काटते हैं, बीरबल आके एक लंबी लाइन खींच देता है, लाइन छोटी हो गई। तो हम आयुर्वेद के लोग एक हमेशा डिफेंस पे रहते हैं। हम कहते हैं हमारी दवाई सेफ है, हमारी भस्मों का तरीका सेफ है। हम कभी ये नहीं कहते कि इफेक्टिव है। तो मेरा जो पैनक्रियाटाइटिस का मॉडल है, जैसे एक सूरज सारे अंधेरे को दूर कर देता है, पैनक्रियाटाइटिस नाम की वो बीमारी जो कि दुनिया में, अमेरिका जैसे मुल्क में 55% लोगों को मार देती है, हिंदुस्तान में 92% लोगों को 10 साल में मार देती है, और इसका बढ़ना रुकता नहीं चीन की फौज की तरह। अगर हम शास्त्र की ऐसी औषधि से, जो कि सेफ तो है ही पर इफेक्टिव भी है, तो हम दृष्टिकोण बदल देंगे। जिंदगी एक ही मिलती है, 2 बार नहीं मिलती। तो ये जो मेरा पैनक्रियाटाइटिस का मॉडल है, पैनक्रियाटाइटिस मींस you are preventing 40% pancreatic cancer. The known fact है कि pancreatitis convert into pancreatic cancer and kills. So by proving the worth of Rus oilseed in the treatment of pancreatitis scientifically, we will open the door of the whole world for Rus शास्त्र। अब इससे भी खतरनाक तो एक्यूट प्रोमाइलोसिटी था, जिसमें पद्मश्री थी, पर उसके मरीज साल में 5000 होते हैं। तो हमारे देश के कुछ महामहिम आयुर्वेद के लोग हैं, पता है क्या बोलते, 1% को, उन 5 लोगों की जिंदगी का नहीं है। तो इस्लाम में लिखा है कि अगर आप एक आदमी को बचाते तो आप पूरी कायनात को बचा लेते हैं। तो अगर हमारी सोच ऐसी छोटी है, हम 5000 लोगों की जिंदगी को मायने नहीं रखते हैं, तो मुझे दुख हो के तो मैं ल्यूकीमिया कभी नहीं छोड़ता। मैंने तो ल्यूकीमिया से जिंदगी बचाई है, तो मैं खतरों का खिलाड़ी नहीं हूँ।
मैं बोलता हूँ डांसिंग विद डेथ इज द राइट टाइटल फॉर। सही है सर। सो सर, लेकिन अभी आप बाकी जो स्टूडेंट्स है या जो भी अभी जो नए डॉक्टर्स है, बहुत लोग आपके पास सीखने के लिए आते हैं, बहुत लोगों को आप सिखाते हो, उसमें से कुछ गिने चुने लोग आगे जाके आपने जो कहा है वैसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन जो लोग आपके पास नहीं आ सकते वहां पे, लेकिन वो कुछ ना कुछ स्पेशलिटी में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहोगे कि कौन सा स्पेशलिटी उन्होंने तय करना चाहिए और कैसे तय करना चाहिए, या एक एक उत्तम चिकित्सक बनना है या एक धनवान चिकित्सक बनना है, जो कि आयुर्वेद में बहुत हम लोग उतना एम नहीं रखते हैं कि ऐसे कौन सी स्पेशलिटी हो सकती है कि जिससे जो भी डॉक्टर है वो नाम, शोहरत और पैसा ये सब कमा सकते हैं। देखिए, देयर इज नो शॉर्टकट। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे भी लोग आए कि हमने पीएफसी में एडमिशन ले लिया और अगले दिन कहता है मैं पासपोर्ट बनवा लिया। तो आज वैद्य बालक का नाम हुआ कब? 84 दिसंबर में मेरे पिताजी गुजर गए, और 97 से पहले आप वैद्य बालक प्रकाश को कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा। 12 साल तक वो वैद्य बालक प्रकाश तखत में खरल लेकर रगड़ता रहता। तो मेरे पास नए विद्यार्थी आते हैं, उनके पास एक ही चीज चाहिए, उन्हें ज्ञान चाहिए। पहले उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, फिर तप होना चाहिए, उसके बाद दुनिया उनकी मुट्ठी में। चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, कोई भी लोग हैं, धुनी होना जरूरी है, धुनी, लगन और मेहनत। अब आप आते हैं मेरे पास, कई सारे बच्चे की साहब हमें माइग्रेन का इलाज सिखा दीजिए, सिखाते हैं। मरीज नहीं आते उनके पास, क्योंकि उनके अंदर वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो वाक पटुता नहीं है। तो स्पेशलिटी नहीं करोगे तो कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि स्पेशलिटी करके लोग आपके पास आएंगे। आज मैं उधम सिंह नगर के शहरी क्षेत्र को छोड़ के देहात क्षेत्र में बॉर्डर एरिया में बैठा हूँ। आज भी मेरे 19 मरीज पेनक्रियाटाइटिस के बैठे हुए। वो कहाँ से आए? एक दिन में नहीं आएंगे। मैं भी यहाँ क्यों बैठा हुआ हूँ? क्योंकि यहाँ पर मरीज को कोई भी तकलीफ होती है, मैं भी घर परिवार छोड़ के बैठा, तो मैं खतरों का खिलाड़ी के 3 तो हार्ट अटैक हो चुके, 4 बार इंसुलिन लगती है, फैमिली जेनेटिक ब्रेन हेमरेज की एज से गुजर रहा हूँ, आंखों में मैकुलर, ये सब है। मेरा जो जुनून है, मैं समझता हूँ कि जो इत्तेफाकन में आयुर्वेद में आया हूँ, जो अनुभव मुझे मिला है, जो प्यार मुझे मिला है, जो सम्मान मुझे मिला है, मुझे अपने आखिरी सांस तक इस आयुर्वेद को विज्ञान के साथ परिभाषित करने का प्रयास करना चाहिए। और साथ दे चलेंगे। अभी मैं राष्ट्रीय गुरु बना, 6-7 लोग आए, एक सज्जन आए कि मैं आपसे पैनक्रेसिस का इलाज, उसको पैनक्रेटाइटिस बोलना भी नहीं आता। मैंने उनका रहने का इंतजाम करा दिया 3 किलोमीटर दूर। सुबह 8 बजे आए, तो उनको पैसा मिलता है, पर मैंने नाश्ता भी अपने कराया, लंच भी कराया, डिनर भी कराया। 8 बज गए और मैं मरीजों को जब खाना दे रहा था, तो मैं कुछ इस तरह कर रहा था कि उनके भी पल्ले पड़े। तो मैंने देखा वो बार बार घड़ी देख रहे हैं, मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा जब मैं बात कर रहा हूँ तुम घड़ी क्यों देख रहे हो? मुझे गुरु और शिष्य की बात हो रही है। तो अगले दिन 5 बजे कहता है कि साहब मेरा ड्यूटी टाइम 8 घंटे का। अबे तू गुरु शिष्य परंपरा में है, तो शिष्य वो है जो गुरु के सोने से पहले उठे और सोने के बाद सोए। तो कहता नहीं साहब, रात को मैंने कहा यहाँ मरीज 24 घंटे रहते, सीखोगे कैसे? नहीं साहब, और खाना भी तुमको दे रहा हूँ, खाने की दौड़ में तो मैं टिफिन लेके आया, और ये कह के वो गायब हो गया। तो कोई सीखना नहीं चाहता। 3-4 लड़कियां आई, अब मेरे यहाँ लड़कियां रहती है कैंपस में, उनके माँ बाप कहते हैं कि ये शहर से दूर है, यहाँ पर माहौल ठीक नहीं है। अरे भाई, ये दूसरी की बेटियां भी बेटियां हैं, यहाँ पर रहती है, मरीज जाके रहते हैं। आज आरवी का फोन आया, मैंने कहा सर आप लोगों ने इंस्पेक्शन किया था, आप सब चीजें देखी थी, यहाँ पर सब चीजें देखने के बावजूद, और वो जो लोग हैं वो मेरे से बगैर मिले जा रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो सुखार्थी ना लाभार्थी। तो आयुर्वेद में सीखने वाले लोगों की बहुत कमी है। उनको एक ही चीज लगती है कि डिग्री ले लो, डिग्री लेने के बाद एमडी कर लो, एमडी लगने के बाद एक टीचर स्कूल में मास्टर बनो, फिर वहां से एक्सपीरियंस करके उससे ऊपर वाले में जाओ, उससे वाले में जाओ, फिर जामनगर पीएचयू में जाके शांति करो। उनको चिकित्सा करने में मदद नहीं आ रहा है। तो आपने जो बीड़ा उठाया है स्पेशलिटी आयुर्वेदिक क्लिनिक, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में आबादी बढ़ने के साथ चिकित्सा करने वाले वैद्यों की डिमांड होती है, और जरूरी है हम बॉन्डिंग करें। तो हम भी बोलते रहेंगे, आप जहां जहां कहेंगे बोलते रहेंगे, हम ओपन भी करेंगे, परंतु
ये इतना आसान नहीं है। पब्लिक पब्लिक आयुर्वेद में विश्वास इसलिए नहीं करती है कि एक तरफ बाबा का आयुर्वेद आता है, एक तरफ टीवी वाला आयुर्वेद आता है, इतने लंबे लंबे विज्ञापन आते हैं। जब तक हम क्रेडिबिलिटी पैदा नहीं करेंगे, जब तक हम साइंस पैदा नहीं करेंगे, तब तक लोग आयुर्वेद की चिकित्सा कराने नहीं आएंगे। और जब चिकित्सा कराने लोग नहीं आएंगे तो स्पेशलिटी बन के होगा। बहुत सारे लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए पर मरीज नहीं आए, फिर उनको वही इंजेक्शन थेरेपी वो सब करनी पड़ी। सर ये माहौल अगर हमें चेंज करना है कि लोगों का जो भी झुकाव है वो आयुर्वेद में एज अ फर्स्ट मेडिसिन अगर होना चाहिए, तो एक पहली बात तो है कि हमें चिकित्सक बहुत सारे बनाने होंगे। लेकिन बहुत जगह हमने देखा है कि एक उत्तम चिकित्सक कॉलेज के बजाय उसको बाहर जाके उसको सीखना पड़ता है। कॉलेज में वो उतने तरीके से पूरी तरीके से ट्रेन नहीं हो पाता, फिर उसको बाहर जाके किसी ना किसी वैद्य के पास जाके सीखो और ये सब चीजें उसको और मेहनत करनी पड़ती है अलग से, फिर जाके वो कहीं ना कहीं जाता है। जैसे अभी थोड़ा महाराष्ट्र और साउथ में देखा जाए तो आयुर्वेद का बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। नॉर्थ में जैसे मैंने जयपुर से पीजी किया हुआ है, तो वहां पे मैंने देखा कि आयुर्वेद के डॉक्टर्स तो है लेकिन लोगों का उतना झुकाव नहीं आता है उस तरफ, बहुत कम देखा जाता है कंपेयर टू साउथ इंडिया। तो नॉर्थ साइड में अगर किसी को प्रैक्टिस करना है, उनकी बहुत इच्छा है लेकिन उनको ये हमेशा टेंशन रहता है कि मेरे पास वो पेशेंट आएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। इसलिए वो मजबूरन कहीं ना कहीं पीएससी में ज्वाइन हो जाएंगे या फिर गवर्नमेंट में सीट देखेंगे या फिर जॉब देखेंगे। तो उनके लिए वो क्या कर सकते हैं कि जिस तरीके से वो एक अच्छे चिकित्सक भी बने और उनके पास पेशेंट्स भी आए? देखिए, हमारे जो आयुर्वेद के कॉलेज हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि वहां पर आयुर्वेद के अलावा सब कुछ कटु सत्य है। और ये मेरी व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा दोष है कि मेरी बातें बहुत कड़वी लगती हैं, पर कड़वा ही होता है। मैं भी जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ वहां पर थोड़ी प्रैक्टिकल नाम की चीज नहीं थी, और मुझे नहीं लगता कॉलेज में मरीज भी अगर देखे जा रहे तो भेड़ बकरी की तरह मरीज फॉलो अप नहीं। हम ये नहीं कर सकते कि जिस मरीज को आज ओपीडी में देखा है वो कल को ठीक हुआ नहीं। तो लिखा है कि जिसने शास्त्र को पढ़ा है और प्रत्यक्ष कर्म किया है, अगर किसी को बाहर जाके भी ज्ञान मिलता है तो कोई बुरी नहीं है। एकलव्य भी तो क्या था ना द्रोणाचार्य के पास, और उसने उसका आइडियल बनाया। ठीक है, मेरे पिताजी गुजर गए, पर मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने केवल एक आदमी से सीखा। मैंने बहुत लोगों से दुनिया में सीखा और आज भी सीख रहा हूं। आचार्यात पादमा धाते पाते तु शस्त्रविद्या पाते तु सैकचारित्य पाते तु कालक्रमणा। ये लर्निंग है, ये सतत प्रक्रिया है। इसमें 25% किताबों से और गुरुओं से मिलती है, तो हमें लगातार मिलती रहती है। आज कितने बीएमए से जिन्होंने वैद के सुभाषितम पढ़ी। वैद के सुभाषितम एक ऐसा ग्रंथ है जो मैं आज रात को सोते समय फिर से पढ़ता हूँ एक श्लोक रोज। आचार्य भास्कर गोविंद घाणेकर जो एक एमबीबीएस और बीएमएस थे, इतना अच्छा अच्छा ज्ञान उनको मिला हुआ है। कितने लोग हैं जो आज मुझे बता पाएंगे कि आज कौन सी ऋतु चल रही है। तुक्के से नाम बता देंगे तो मैं पूछूंगा कब से शुरू कब खत्म होगी, आपको पता चलेगा नहीं है। तो आज का जो आयुर्वेद का स्नातक है वो अमेरिका की तरफ देख रहा है, वो विदेशों की तरफ देख रहा है, वो चकाचौंध तो देख रहा है, और अपने अंदर जो ज्ञान की ज्योति है उसको जलाने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसको तुरंत तुरंत चाहिए, तो तुरंत तुरंत कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इसीलिए मैं इसको विज्ञान के साथ परिभाषित करना चाहता हूँ। आयुर्वेद के कॉलेजों में अभी जगह जगह मोटिवेशन भी उड़ाया गया। मैं हजारों लोगों से मिला, मैं 400 से ज्यादा बीएमएस से एक सवाल पूछता हूँ, मुझे 5 कब के नाम बताओ। मुश्किल से 4 लोगों ने झटके में नाम बताया। और एक देश का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, मैं नाम लूंगा तो कुछ लोग जाएंगे। वहां पर एक एमडी मुझे बुलाया गया। एमडी काय चिकित्सा का बच्चा मुझे एयरपोर्ट में लेने आया, बुके दिया, फोटो खींची, पैर छपाया, पैर छुए। और मैंने जब रास्ते में पूछा, बेटा 5 कफ के नाम बताओ, तो उसके मुंह से तो प्राणवायु भी नहीं निकला। तो केवल किताबी ज्ञान से हमारा काम नहीं चलेगा, और हमारे यहाँ पठन पाठन और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसका अभाव हुआ है। और साउथ इंडिया में भी मेरा सेंटर रहा है आरसीसी त्रिवेंद्रम में, तो दूर के ढोल सुहावने। साउथ में जितनी राइवलरी एलोपैथी और आयुर्वेद में उतनी नॉर्थ में नहीं है। साउथ से क्यों नहीं ऐसे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आए जो दुनिया में ले। आज अगर मैं आरसीसी त्रिवेंद्रम में मेरी जब यूनिट खुली तो मैं कहता हूँ वहां पर तो 150 साल पुराने तंत्र है।
वो क्यों नहीं एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऐसा डेवलप कर पाए जो यूनिफॉर्मली सारे आयुर्वेद के लोग करें? डेटा तो बनाना चाहिए ना, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज करते हैं एलवी से, हमारी दवाइयों से 300 पेशेंट थे, इसमें से मॉडरेट, सीवियर, माइल्ड कैटेगरी के थे। माइल्ड में उनका प्रोग्रेशन हो गया, मॉडरेशन में प्रोग्रेशन स्लो हो गया, सीवियर में ऐसा हो गया। वी डोंट हैव ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स। तो हमारे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, चाहे साउथ के या नॉर्थ के थे, क्या उन्होंने कोई डेटा बनाया? क्या हमारी जो यूनिवर्सिटीज है आयुर्वेद की, क्या इनके पास कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऐसे हैं कि दे आर नोन फॉर एनीथिंग? आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिया, मेरे पास जयपुर से 11 मरीज पैनक्रेटाइटिस के ठीक है, और जयपुर छोड़ के मेरे पास आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ तो ये गए थे? नहीं गए। क्यों नहीं गए? बोले वहां इलाज होता है क्या? वो तो कॉलेज है। तो अगर हम अपने आप को चिकित्सक के तौर पे स्थापित नहीं करते हैं, या केवल चार सूत्र और वेलनेस नहीं बात करेंगे, हमको चिकित्सक के तौर पर आयुर्वेद की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थित करना पड़ेगा, और चिकित्सा उसकी करनी पड़ेगी तो असाध्य है। आज क्या हुआ, कोरोना में सबने बोला ना कि आयुर्वेद इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। मैं पूछता हूँ, अरे भैया इम्यूनिटी के कौन से मार्कर पर काम करता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आईजीजी लेवल है, नेचुरल किलर सेल है, कि एंटीहिस्टामिनिक है? वी आर नॉट बीइंग पैरामीटर्स, बोलते हैं इम्यूनिटी ठीक हो जाती है, कैंसर ठीक हो जाता है, सारी बीमारी ठीक हो जाती है। Ayurveda has to be brought back into public domain with objective parameters जो public को समझ में आती है। वही है सर, आज की जो भाषा है उस भाषा में हमें आयुर्वेद समझाना पड़ेगा। चिकित्सा के जो मूल सिद्धांत है उसको बिना हाथ लगाए भी हम लोग ये सब लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बस वो इच्छा होनी चाहिए, वो मनीषा होनी चाहिए कि एक बार सामने वाले को अगर हमने ये बता दिया, ये कन्वे कर दिया उनके लैंग्वेज में, एक बार उनको वो विश्वास बैठ गया तो फिर हम हमारी परिभाषा उनको समझा सकते हैं। लेकिन अगर पहले से ही हम लोग उसी परिभाषा में उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो उसको बहुत टाइम लगेगा और पेशेंट आना जैसे कम हो जाएंगे। तो पैंक्रियाटाइटिस का आयुर्वेद का नाम लेकर अगर हम ज्यादा बोलने लगेंगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन पैंक्रियाटाइटिस सबको समझ में आता है क्योंकि उनका डायग्नोसिस हो चुका होता है। और फिर वो इधर जी पैंक्रियाटाइटिस का जब नाम आयुर्वेद में आएगा तो आयुर्वेद में तो पैंक्रियास नाम का ऑर्गन ही नहीं है। हाँ, तो यकृत प्लिया उधर रोग है, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। यकृत और प्लिया देश में जो बीमारियों करती, तो आज हम अगर बात प्रकृति, प्रकृति, कवच प्रकृति हमारा डायग्नोस पैरामीटर है, जो कि डॉक्टर उड़ोपा थे, जी, उन्होंने कहा था एक मॉडल है जिसमें मॉडर्न डायग्नोसिस हो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हो और जनता को फायदा। मैं उस मॉडल को करता हूँ। मैं इस चक्कर में पढ़ता ही नहीं कि उसकी वातज प्रकृति की, पित्त प्रकृति, कफत प्रकृति की, फिर इस डायग्नोस और मॉडर्न पैरामीटर। और आज एक पेशेंट थी, डॉक्टर वैशाली है वहां की, पूना की। 5 साल पहले मैंने उनका इलाज किया, बड़ी खुश थी। भाई जी आज मेरा एमआरसीपी 5 साल बाद हुआ है, उसमें कोई प्रोग्रेशन नहीं। पैनक्रियाटाइटिस में होता क्या है? कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन। पूरे डॉक्टर कहते हैं कि साहब कमाल है, हमने आज तक नहीं देखा कि 5 साल तक स्टेबल रहा। तो हम आयुर्वेद के रस शास्त्र पर आधारित वो दवा जो जहर है, कब जहर है? जब वो रॉ रूप में। जैसे आप पुलिस में जाते हैं, एक खेत से निकल के लड़ाकू होके जाते हैं, पर ट्रेनिंग के बाद पहले आप मारने वाले थे, बाद में बचाने वाले हो जाते हैं। तो वही रस और है कि जो टॉक्सिक है इन द बिगनिंग, 5 साल की रिगरस ट्रेनिंग के बाद वो बचाने वाली बन जाती है। और हम एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल बना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हमने इस तरह के प्रोटोकॉल, छोटे छोटे प्रोटोकॉल बनाए, और आप जैसे के माध्यम से जो आपके प्रयास हैं वो किए, तो निसंदेह छोटी छोटी पॉकेट बनेगी। और अगर हम 16-17 ऐसी पॉकेट बनाने में कामयाब हो गए तो 16 से 16,000 बनने में देर नहीं लगेगी। यस, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। बस यही है कि ये मिशन को सब लेके साथ में चले, और आयुर्वेद को जितना हम अच्छे से पढ़ेंगे और ब्रॉड विजन के साथ पढ़ेंगे तो ही जाके हमें उसका फायदा होगा और उससे हमें लाभ भी होगा, एक अचीवमेंट होगी। सो आज के जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अभी इंटरव्यू के लास्ट पार्ट में आ रहे हैं, तो आज के स्टूडेंट्स अगर उनको किसी फील्ड में अगर अपनी प्रैक्टिस सेट करनी है तो एक 4 से 5 स्पेशलिटी सर आप बताइए कि जो वो फोकस कर सकते हैं कि जिसमें उनको डेफिनेटली सक्सेस मिल सकता है आयुर्वेद से। देखो आज का जमाना जो है, कोरोना काल में सबसे पहले एलर्जीज आर ऑन राइज, एंड देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर एलर्जीज। तो आई विल से कि हमारे पास हॉट केक है, 25% लोगों को एलर्जी है।
अगर कोई केवल एलर्जी का क्लिनिक खोल के बैठ जाए और उसके पास 600 मरीज एलर्जिक राइनाइटिस, परसिस्टेंट एलर्जिक राइनाइटिस आ जाएंगे, तो उसी में पागल हो जाएगा। दुनिया में 22 करोड़ लोगों को माइग्रेन है, माइग्रेन का भी इलाज नहीं है। तो एलर्जी, माइग्रेन, तीसरा ब्रोंकाइटिस, खांसते रहते हैं लोग, नॉन इन्फेक्टिव एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और राइनाइटिस। तो फेफड़े की तीन हो गई, एलर्जी, राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, चाइल्डहुड अस्थमा जो में बार बार होता ही रहता है। तो ये तीन तो हमारे पास लंग्स की हो गई। फिर पूरा पेट तो आयुर्वेद का ही है, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, चाहे वो पैनकेटाइटिस हो, चाहे वो कोलाइटिस हो, चाहे वो इंडाइजेशन हो, आयुर्वेद का उससे बढ़िया नहीं है। तो आयुर्वेद वाला बोलेगा साहब सिर के नीचे। तो हम जो वेलनेस में घुस गए ना, वेलनेस करने तो जिसको करनी है, आयुर्वेद तो पूरा का पूरा कहाँ से शुरू करोगे, डर में जहां भी टाइटिस लगा हुआ है, जहां भी टाइटिस है और नॉन इन्फेक्टाइटिस, डर्मेटाइटिस, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, ये सब आयुर्वेद के सुर है, क्योंकि आयुर्वेद पूरी इम्यूनोमोडुलेटरी साइंस है। Inflammatory disorders. तो inflammatory disorder is the sign of weak immunity. तो आयुर्वेद chronic inflammatory, chronic immunological and और आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इसमें आयुर्वेद आराम से क्यूरेटिव एस्पेक्ट कर सकता है। हमको तकलीफ तब होती है जब हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं, सेरेब्रल पैल्सी का इलाज करते हैं। आज तक तो मैंने देखा कि सेरेब्रल पैल्सी की एक उंगली हिल गई, यू शुड गो जिसका कि स्टैटिस्टिकली एविडेंट दिखाई दे सामने। अभी देखो, मैंने जो पैनक्रेटाइटिस पे काम किया 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, हवाई में एक मीटिंग थी अमेरिकन पैनक्रेटिक एसोसिएशन और जापान पैनक्रियास सोसाइटी की। तो मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तानी मेरी कितनी कदर करते हैं, पर जब मैंने अपना वहां पर डेटा भेजा, I was the only person among 1200 top hepatic biliary और pancreatic specialist from the whole world जिसका पोस्टर वहां पर प्रेजेंटेशन हुआ और पैनक्रियास में पब्लिश किया। तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो हमारे पास खजाना पड़ा हुआ है, पर आयुर्वेद के जो लोग जो भी करना चाहते हैं उसके बारे में उन्हें A to Z सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बहुत जरूरी है। उनको फार्मेसिस्ट के तौर पे नहीं कि ये हम दे देते ये दे देंगे, पहले ज्ञान को, फिर मरीजों से बात करने की ताकत भी होनी चाहिए। यू टेक इट, यू विल बी ऑलराइट इफ यू फेथ। तो मेरे पास जब कोई मरीज आता है कि मेरा आयुर्वेद में फेथ है, मैं पता क्या करता हूँ, खड़े हो जाओ और अपने घर से बाजू वाला जो आयुर्वेद सेंटर है वहां पे जाओ। उनको बोलना पड़ता है कि हमारा फेथ वैद वालिंदु में, और वैद वालिंदु में फेथ क्यों साहब, आई डोंट वांट टू ट्रीट एनीबॉडी हु हैज फेथ इन आयुर्वेद। मैंने कहा तेरे को फेथ रख बाजू में, तू मेरी बात सुन और फिर तू मेरा फैन बनेगा। तो आपको अपनी क्लाइंट, और वो मेरी जो नॉलेज है, सब्जेक्ट पर नॉलेज है, आके कहते हैं जो आप कर रहे हो तो एआईजी भी नहीं कर रहा है। तो आज पैनक्रेटाइटिस पे जिस तरीके से हम इलाज करते हैं, जो हम डायग्नोज करते हैं, जो टेस्ट कराते हैं, सारे मरीज हैरान होते हैं। डॉक्टर्स आके यार कमाल हो गया, स्केन 19.9 तो आपसे पहले किसी ने कराया ही नहीं। टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट डिजीज फ्रॉम तरह के हिसाब से सारा ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। पहले नॉलेज होनी चाहिए, और अगर कोई प्रैक्टिस में आना चाहता है तो उसको अपना सेपरेट डेवलप करना चाहिए। ये नहीं कि मैं 9 से 11 खोलूंगा, फिर लंच चला जाऊंगा, फिर संडे को छुट्टी करूंगा। अवेलेबिलिटी इज द सेकंड ऑप्शन। आपको कोई ना कोई हैंड ऐसा हो जहां पर हर समय मरीज पहुंच सके। और तीसरा, आपके कुलीग आपके बारे में क्या बोलते हैं, ये आपका नहीं होना चाहिए। आपका होना चाहिए कि समाज आपके बारे में क्या बोलता है। तो मैं वैद वालिंदु प्रकाश हूँ, आयुर्वेद जगत मेरे बारे में क्या बोलता है, माय फुट, मेरे पड़ोसी मेरे बारे में क्या बोलते हैं, दैट मैटर्स। तो फेवरेबली नोन टू द सोसाइटी। प्राणी नाम आरती नाशनम, वो चरक का एक श्लोक है, ना तो हम काम्य राज्य स्वर्गम में पुनर्भवम, मैंने कहा इसको बाद में लिख दो। आजकल हमें मरने के बाद स्वर्ग नहीं चाहिए, जीते जी स्वर्ग चाहिए। हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए, मैं बार बार धरती पे आने में हमें जमीन जायदाद फार्म हाउस भी चाहिए। तो किसी ने लिखा वैद वालिंदु का सिंपली वैद जी बिलीव इन लेविश लिविंग, क्या हर्म है, माया मोह है, सब माया मोह है, मुझे मालूम है। तो मैं पेड़ के नीचे कपड़े उतार के नहीं बैठ सकता, वो भी मरते हैं, और जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं वो भी मरते हैं। जब मैं ऐसा करता हूँ तो मैं लोगों को रोजगार पैदा करता हूँ, जब मैं पैसा खर्चा करता हूँ तो भी लोगों को पैसा देता हूँ, पर मेरा जो बेसिक है प्राणी नाम आरती नाशनम वो होना चाहिए। तो एक समय था जब हम त्याग करके
लोगों को फायदा करते थे, पर उस चक्कर में घरवाली भी भाग जाएगी, बच्चे पास नहीं आएगी, काम कैसे करो। तो इसीलिए भाव प्रकाश ने लिखा है धनेषणा प्राणेषणा सुखेषणा। सुखेश। चरक के बाद जो भाव प्रकाश की किताब आई है, लिखा धनेषणा भी होनी चाहिए, सुखेषणा भी होनी चाहिए, प्राणेषणा भी होनी चाहिए। तो आपके द्वारा मैं सभी को कहता हूँ कि खूब कमाओ नाम, खूब रहो शान से, पर काम करो ईमानदारी से, और लोगों को दूर करो। और जो हितेश जी का एक सपना है स्पेशली क्लिनिक बनाने का, उसमें आपका सहयोग हो, आप लोग उसमें भाग लीजिए। और ये मेरा कर्तव्य है, जैसे मैं भारत सरकार को इनकम टैक्स देता हूँ, इसने मुझे बड़ा होने में, पढ़ने में, पढ़ाने में मदद की, तो मैं उसके प्रति टैक्स दे रहा है। उसी तरह आयुर्वेद जगत के प्रति भी मेरा टैक्स पड़ता है। तो आप जब जब भी मुझे बुलाएंगे, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच सर। इतना इंसाइटफुल और इतना प्रैक्टिकल नॉलेज आज तक किसी ने नहीं दिया है, और ये भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे कि आप हर एक कोने कोने में आप पहुंच सकते हो, और लोगों को ये चाहिए। आयुर्वेद तो वो संहिता से सीख सकते हैं, आयुर्वेद तो वो क्लिनिक में सीख सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ का, जो प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को, जो जब वो प्रैक्टिस में आते हैं तो उनको एक कंफ्यूजन रहता है कि मैं पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, या मुझे आगे कैसे चलना चाहिए, मुझे आगे क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, या फिर कुछ सक्सेसफुल अगर सामने उनको कोई दिखता है तो हाँ चलो ये इनको मैं आदर्श मानता हूँ, ही इज माई आइडल, तो उनको तो भी मैं फॉलो करूँ। आयुर्वेद में ऐसे देखने वाले लोग बहुत कम है, तो यू आर वन ऑफ देम कि आप सब चीजों पे यू आर अ ट्रू रिसर्चर, यू आर अ ट्रू क्लिनिशियन, एंड यू आर अ ट्रू रिच आयुर्वेदिक पर्सन। सो ये सब चीजें आप में है, तो डेफिनेटली हम सब लोगों को आपकी तरफ देख के एक गुरु का और एक आदर्श व्यक्तित्व का एहसास होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर हियर, and again I'm appealing everyone, like we have started a specialty practice blueprint course, that is an online course, and you can just enroll in that course and learn everything from scratch, कि आपको शुरुआत से, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको नॉलेज गेन कैसे करना है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बनाने हैं, आपको डायनामिक पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, ये सब का गाइडेंस उस कोर्स में प्री रिकॉर्डेड वीडियो से आपको मिलने वाला है। So and I'm also conducting live workshops for that। अगर आपको कम समय में जानना है कि कोर्स कैसा है और क्या होने वाला है, so please join in, and again thank you sir। Soon I'm going to visit at your place and Anytime, most welcome. Yes, going to meet the bride of Doon very soon sir। Thank you. Yes, thank you sir।